Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. As we were discussing the chapter, A Truly Beautiful Mind. Got it? A Truly Beautiful Mind. It is totally about Albert Einstein. Okay. I also explain you lot things which are related to the Albert Einstein. That about his birth, when he was born. Got it? And we can say new surprise for the parents also, that till half an we can say 2.5 years he did not speak a word, and finally what did he speak? He spoke only the hot, the we can say soup is very hot. Is that clear? We have discussed till here, understand? And जो फॉर्मूला है वो भी उन्होंने दिया, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. एंड about the we can say suggestions of the headmaster, the suggestions which were given by the headmaster to his parents, that was also important, that whatever subject he would choose he would not succeed, he would not get success in his life. These were the words which were spoken by the headmaster. And meanwhile Albert Einstein also fell in a love with a girl, and she was also having the same subject, and we can say same field with him. And that was a very good chemistry of Albert Einstein with the girl, which we have discussed. And when it was 19, when he was 21 year old, he was jobless. Got it? He graduated from university, but he did not get any job for 2 years, or we can say in 1902 he before 1902 he gave private lessons to the students. That was the earning of Albert Einstein. And after that he became the technical expert in patent office in Bern, जहाँ पे वो क्या करता था, he assist the inventions. और उसी टाइम पे वो अपनी कुछ थ्योरीज वगैरह भी लिखने लग गया. दैट इज रिलेटिविटी से थ्योरी लिखी उन्होंने, आइंस्टाइन ने, और दैट वाज आल्सो वेरी फेमस meanwhile. And now next we are going to discuss, while Einstein was solving the most difficult problem in physics. What? He was solving most difficult problems which he faced in physics. His private life was also unraveling. Unraveling मतलब था starting to fall, गिरना शुरू, उसकी जिंदगी भी डगमगाना शुरू कर दिया. Albert had wanted to marry Minerva Wright. वो जो लड़की जिससे वो प्यार करता था उससे शादी करना चाहता था अल्बर्ट. Right after finishing his studies. कब? After just finishing his studies. But his mother was against it. But Albert's mother was not in the agreement, that we can say she was not agree that Albert would marry with that girl. Why? She thought कि मिलेविया who was 3 years older than her son, अपने बेटे से 3 साल बड़ी. यानी what she was thinking, that the girl is 3 years older than her son, was too old for him. And next is, पहला तो ये सोचा उसने कि वो उससे 3 साल बड़ी है. दूसरा, she was also bothered by मिलेविया's intelligence. और वो लड़की भी उतनी इंटेलिजेंट थी जितनी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन था. तो वो उससे भी परेशान थी, उसकी इंटेलिजेंस से परेशान थी. क्यों? शी इज ए बुक लाइक यू. शी सेड टू आइंस्टाइन कि शी वाज आल्सो जस्ट ए बुक दैट लाइक यू, बिकॉज यू आल्सो लव द बुक्स एंड शी आल्सो हैड द सेम वी कैन से इंटरेस्ट. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. उसकी मदर ने कहा कि तुम ये शादी रोक दो. यानी उसकी मदर के क्या विचार थे? एज द गर्ल वॉज 3 years older than him. नेक्स्ट, शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई हर इंटेलिजेंस. शी यूज टू से टू अल्बर्ट आइंस्टाइन कि शी इज ऑल्सो बुक लाइक यू, और तुम्हारी लाइफ सेट नहीं होगी, जिंदगी सही नहीं चलेगी. देन शी सेड, अपने बच्चों को बोला कि यू शुड नॉट मैरी विद दैट गर्ल. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. बट उन्होंने शादी कर ली. पेयर मीन्स जोड़ा, जोड़ा मतलब लड़की और लड़का दोनों. एंड हैड 2 sons. They had also 2 sons. But a few years later, लेकिन after spending few years, the marriage faltered, became weak. शादी का जो बंधन है वो कमजोर पड़ गया.
Mileria meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अपनी जो एम्बिशंस थी वो खो रही थी मिलेविया, और वो क्या बन गई थी, हाउसवाइफ बन गई थी. वो भी कुछ करना चाहती थी, बट शी बिकम्स अनहैप्पी हाउसवाइफ. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, दोनों में लड़ाई हुई, अल्बर्ट आइंस्टाइन में और उसकी वाइफ में. द कपल फाइनली डाइवर्स इन 1919 में तलाक हो गया. द कपल मीन्स आइंस्टाइन एंड हिज वाइफ डाइवर्स्ड. आइंस्टाइन मैरिड इज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से शादी कर ली, दैट वाज एल्सा. तो यहाँ पे क्या हुआ, 1903 में उन्होंने शादी की. दे हैड 2 सन्स एंड 1999 में, इतने सालों बाद, फाइनली दे डाइवर्स्ड. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि वो अनहैप्पी हाउसवाइफ थी, यानी वो एम्बिशंस उसकी थी वो पूरी नहीं हो रही थी. और आफ्टर दैट आइंस्टाइन मैरिड विद अदर गर्ल, his cousin Elsa. Einstein's new personal chapter coincided का मतलब होता है, we can say जुड़ा हुआ है, his rise to world fame. अब वो वर्ल्ड फेम पे कैसे आते हैं, वर्ल्ड में अपना नाम कैसे कमाते हैं, तभी तो हम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन थे. In 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपनी जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी वो पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी को प्रोवाइड करता था, ग्रेविटी के बारे में बताता था. एंड क्लिप्स ऑफ ए सन इन 1999 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1999 में पता चल गया कि ये सही है थ्योरी. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field. यानी कह रहा है कि फिक्स स्टार की जो लाइट है वो किसके द्वारा चेंज हो सकती है, सन के द्वारा. ग्रेविटेशनल फील्ड, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन. और ये जो थ्योरी थी ये एक प्रकार का साइंस की क्रांति के रूप में उभर के आया. द थ्योरी विच वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला 1921 में. आइंस्टाइन गॉट. ही वाज showered with honors and invitations from all over the world, and not only he got the prize, he was also given lot of honor and invitations from all over the world. पूरे संसार से उसको invitations आई. एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी काफ़ी उसकी प्रशंसा की. किसके साथ हो रहा है सब, आइंस्टाइन के साथ. करेक्ट. यानी इन 1915 ही हैज गिवन ए थ्योरी दैट वाज रिलेटेड टू रिलेटिविटी. और ये जो थ्योरी है 1999 में जाके सर्टेन हुई कि हाँ, वर्ल्ड ने उसको सहमति दे दी कि आइंस्टाइन वाज एब्सोल्युटली राइट. और इसके बाद यानी ये एक प्रकार का साइंटिफिक रिवोल्यूशन था आइंस्टाइन का. एक्चुअली दीज जैसे कि ये जो आइंस्टाइन करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच ए लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय योर साइंस टीचर. दे कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. सो बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वाज द इन्वेंशन ऑफ आइंस्टाइन. और ये जो इन्वेंशन था इसने आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिलाया फिजिक्स में इन 1921. व्हाट इट. अब देखो अब क्या हुआ. मीनवाइल उसी के साथ हिटलर, जर्मनी था वो बहुत ही कह सकते हैं कि युद्ध का हमेशा आगाज करने वाला कंट्री था उस टाइम पे. हिटलर की बहुत बड़ी भूमिका थी हर टाइम पे. तो अब देखो क्या होता है. When the Nazis came to power in Germany, जब जर्मनी में नाजी एक ग्रुप है, जब वो लोग जर्मनी में आए, उनको मतलब उनकी जब सत्ता आई जर्मनी में, in 1933 आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टाइन चले गए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट. 5 years later, after departure 5 years later, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन. जो बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन, तो न्यूक्लियर विस्फोट की जो डिस्कवरी हुई बर्लिन के अंदर, हैड अमेरिकन साइंटिस्ट इन ए अप्रोर.
उन अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, जो वहाँ के जो लोकल वैज्ञानिक थे, उनको अपसेट कर दिया। बर्लिन के अंदर जो न्यूक्लियर फिशन हुआ, जो थ्योरी आई, उससे अमेरिकन लोग परेशान हो गए, अमेरिकन साइंटिस्ट मोस्टली। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। और उनसे क्या हुआ, जो फासिज्म था वो कहते हैं कि ग्रुप था, वहां से भाग चले गए वहां से। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने भी किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड टू नाजीज। और वो डर रहे थे नाजी लोगों से। क्यों? दे कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, कि वो नाजी लोग हैं, वो एटॉमिक बम बना सकते हैं और उसको यूज में भी कर सकते हैं, परमाणु बम। हिरोशिमा नागासाकी याद है, पढ़ा होगा, याद तो क्या होगा। यानी सब कुछ एक लिटिल, वी कैन से लिटिल, बोलते हैं ना, इस नाम से बम गिराए थे उसके ऊपर, लिटिल बॉय बोल के। हिरोशिमा नागासाकी सब खत्म, जापान के दोनों, बहुत ही ज़बरदस्त तबाही मची थी। उसके बाद में न परमाणु बम का किसी ने यूज़ किया है और न शायद भविष्य में कोई करेगा। अब करेगा क्यों नहीं? क्योंकि लगभग जो शक्तिशाली देश हैं उन सबके पास अपने अपने परमाणु बम हैं, और पता है कि हम यूज करेंगे तो रिप्लाई में वो भी यूज करेगा। तो ये जो हथियार है, ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं अपन इसको। हमारे इंडिया के पास भी है, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के पास भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हथियारों को कैसे संभाला जा सकता है। वो आतंकवादियों के हाथ में भी लग सकते हैं। अगर वो टेररिस्ट के हाथ लग गए तो दुनिया तबाह हो सकती है। इसीलिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड अनफॉर्चुनेटली। बट नाउ वो लोग डर गए थे कि नाजीज जो है दे कैन मेक परमाणु, जो एटॉमिक बम है, दे कैन मेक। एट द अर्जिंग ऑफ कलिग की रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उनके जो साथी थे उनकी रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा। किसको? अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उस टाइम पे कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939 वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार। कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, जिसमें आइंस्टाइन ने वार्न किया था, चेतावनी दी थी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि अगर इस टाइप का एक बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, अगर बंदरगाह पे गिराया जाए, might very well destroy the whole port together with the sum of surrounding territory। उस पोर्ट के अलावा उसके आसपास की टेरिटरी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना शक्तिशाली होता है परमाणु बम। Who had written this letter? आइंस्टाइन, टू whom फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये लेटर लिखा कि इतना डेंजरस बम है वो, इतना खतरनाक है कि वो एक पोर्ट नहीं, पोर्ट की सराउंडिंग को भी बर्बाद कर सकता है। गॉट इट? अब क्या हुआ, आइंस्टाइन ने सोचा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को लेटर लिख रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल मैन को, बट हुआ उल्टा। His word did not fail to have an effect। जो आइंस्टाइन ने लिखा था उसके सब बेकार नहीं गए। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। रूजवेल्ट को क्या करना चाहिए था कि जो उन्होंने बना रहे हैं उनको नष्ट करना चाहिए था, जो दूसरे वाले बर्लिन के अंदर जो हो रहा था, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये एक चेतावनी लिखी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद ने बनाने शुरू कर दिए चोरी छुपे। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने खुद के सीक्रेट प्रोजेक्ट में बनाने शुरू कर दिए। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त में जापान के दो सिटी हैं, शहर, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे डाल दिए अगस्त 1945। उसके बाद जो जापान बर्बाद हुआ है, जापान ने हथियार डाल दिए, जापान ने अपने खुद के परमाणु संयंत्र बंद कर दिए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था जापान। तो अमेरिकन लोगों ने क्या किया, हम उसको साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे जो उसने आइंस्टाइन ने जो लेटर लिखा था उसका अदर वे में यूज में ले लिया। यानी आइंस्टाइन वांटेड टू वार्न देम कि दिस टाइप ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी वी कैन से कंडक्ट इन द जर्मनी। बट अमेरिकन्स ने क्या किया, खुद अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और हिरोशिमा और नागासाकी पे डाल दिया बॉम्ब।
आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये जो बर्बादी हुई, ये जो तबाही हुई, सबसे ज़्यादा दुख किसको हुआ? हिल गए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जी खुद हिल गए, यानी वो एकदम से शॉक में चले गए कि ये क्या हुआ। यानी अपने आप को भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे वो इस चीज़ के लिए कि काश मैं लेटर नहीं लिखता, मैं बताता नहीं। दिस टाइम ही रोट द पब्लिक मिशिव, मिशिव मतलब होता लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल पब्लिक मिशिव टू द यूनाइटेड नेशंस। दोबारा उसने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा। इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन जो लेटर रूजवेल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाला, जो रूजवेल्ट ने अपना खुद का सीक्रेट प्लान बना लिया, इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ, किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अगले 10 सालों में आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप, हथियारों का हमेशा विरोध किया, हथियार बनाने का विरोध किया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी पॉपुलरिटी को समाज में, देश में, वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम में लिया, यानी वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए वो काम करने लग गए। हु? आइंस्टाइन। When Einstein died in 1955, जब 1955 में उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, कब किस एज के थे वो? 76 के। He was celebrated as a visionary world citizen as much as scientific genius. उनको एक विजनरी वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मनाया, याद किया गया, साइंटिस्ट से ज़्यादा वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको सम्मान दिया गया। सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट वाज द चैप्टर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इन दिस चैप्टर यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरीके से एक अनयूजुअल बॉय जो कि आइंस्टाइन था फ्रॉम बर्थ, यानी एज वेल एज हिज हेडमास्टर वाज ऑल्सो मेकिंग अ रॉन्ग वी कैन से आइडिया अबाउट हिम कि ये कोई भी सब्जेक्ट चूज करे ही वुड बी नोन एज अ फेलियर। और मैंने इसके बारे में पढ़ा कि जब वो स्कूल में थे तो वो स्कूल छोड़ने को बिल्कुल तैयार हो गए थे, क्योंकि उस स्कूल में उनका मन नहीं लगता था। ही नेवर लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, और उन्हें 1 ईयर चाहिए था अपना जो हाई स्कूल पूरी करने के लिए, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर किसी डॉक्टर से लिखवाकर कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा। टीचर भी बोर थे उससे, ठीक है, उसने डॉक्टर से, अपने दोस्त डॉक्टर से लिखवाया कि मुझे कोई बीमारी है, और वो दिखाया उसको लेटर दिखाने से पहले ही हेडमास्टर ने उसको बुलाया और निकाल दिया स्कूल से। वो अपने हिस्ट्री टीचर से तो भिड़ते रहते थे, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना। वो केवल एक ही चीज़ को पसंद करते थे, मैथ टीचर, और सब चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। और देखो सरप्राइजिंगली क्या है, उनका रुचि, उनकी जो इंटरेस्ट है कि जब उसकी सिस्टर पैदा हुई तो कहा कि वेयर आर द व्हील्स, क्योंकि ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज, दैट इज व्हाई ही वाज आस्किंग अबाउट द व्हील्स ऑफ द गर्ल। एंड नॉट ओनली दिस, एक चीज और भी देखी कि 2.5 years ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, एंड व्हेन ही स्पोक ही ओनली सेड द सूप इज वेरी हॉट, सूप इज वेरी हॉट। मीन्स इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में सेटिस्फाइड था, जो उसको मिलता था अगर वो सेटिस्फाइड है तो ही वुड नेवर कंप्लेन, और अगर नहीं है तो तुरंत बता देता। एंड हिज मदर एंड फादर वर आल्सो सरप्राइज्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ आइंस्टाइन। और एक चीज बड़ा सर, तो ये सब। और दूसरा ब्रदर बोरिंग, ही वाज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट टू प्ले विद हिज ओन एज चिल्ड्रन, नो, क्योंकि उनकी ये क्या था, ये लक्षण होते हैं एक, यानी कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ अलग। दैट वाज मिस्टर आइंस्टाइन, अंडरस्टैंड? सो these are the questions. Also there are a lot of questions. Who had these we can say, now that I'm giving you, who had these opinions about Einstein? He was boring, friends. He was stupid and would never success in his life, headmaster. He was a freak, mother, और we can say ये सब सोच रहे थे।
Explain what the reasons for following are. ये Einstein leaving the school in Munich for good, ये सब explain करने हैं. And what did Einstein call his desk drawer at the patient's office? क्योंकि secretly वो कुछ कर रहे थे उसमें. That is why he was saying that my desk drawer is a patient's office. वो कुछ theories, कुछ चीज़ें अपनी खुद की अपनी वहाँ पे स्टोर कर रखी रही उन्होंने, इसीलिए. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? क्योंकि वो रोकना चाहते थे जो विनाशकारी हथियार बना रहे थे ना बर्लिन में, जो न्यूक्लियर फिजन, they were developing a nuclear fission. To stop this, he wrote a letter to Franklin Roosevelt. How did Einstein react the bombing of Hiroshima and Nagasaki? Completely कैसे रिएक्ट किया जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए? He was completely shaken and he had left the interest in, we can say, making the weapons, and he started to make a companion for the world, and he has interest in the peace for the world. That is why. Why does the world remember Einstein as a world citizen? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड के शांति के लिए काम किया, उन्होंने पीस के लिए काम किया एज ए साइंटिस्ट से ज़्यादा बढ़कर. गॉट इट? तो एक्सप्लेन व्हाट रीजन फॉर द फॉलोइंग आर. ये देखो रीजंस में, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, अच्छे के लिए छोड़ा क्योंकि मन नहीं लग रहा था वहाँ पे और वो पढ़ना चाहता वहाँ पे. आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक, क्योंकि उसका खुद का इन्वायरमेंट फील कर रहा था अपने देश का. आइंस्टाइन सीइंग इन मिलवे एंड एलए, क्योंकि सेम स्टेटस सेम सब्जेक्ट, दैट इज वाई. व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन? ये सब क्या चीज़ें हैं जो आइंस्टाइन के बारे में बताती हैं? यानी एक प्रकार से परफेक्ट मैन, अपनी प्लान के हिसाब से चलना, अपने प्लान को डेवलप करना, ये सब कुछ. सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड आई वुड आल्सो गिव यू न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर. आई होप यू गॉट दिस चैप्टर. You are not having any doubt, I think. If you are having queries, doubt, you can call me, you can WhatsApp me. So we have completed this chapter also. Is it clear? Till then, bye.